Hello everyone, welcome to your science virtual class. Dear students, today we will continue our chapter 9, that is our universe, the solar system. So our topic is the earth. Earth is a unique planet, as you know it very well. Earth एक unique planet है. It has water in liquid form, oxygen in air and warmth. यहाँ पे water liquid form में होता है, oxygen air में होती है. All these things are necessary for life to take form and exist. Earth is full of different form of life. Earth अलग अलग form है life की, जैसे plants, animals, insects, birds and humans. The presence of life makes it the most beautiful and unique planet. और यहाँ पे जो life present है उसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल unique planet है. Till now, it is the only planet that has life. As I told you earlier, ये एक अकेला planet है जहाँ पे life है, but it had not always been like this. Earth was formed long ago from a cloud of dust and hot gases. और अर्थ बना कैसे? अर्थ बनी क्लाउड ऑफ डस्ट से और हॉट गैसेस से. इनिशियली इट वॉज वेरी हॉट. स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़्यादा हॉट थी. विथ टाइम द हॉट गैसेस फॉर्म्ड क्लाउड. There were continuous rain that cooled the outer surface. The surface became hard on cooling. और जो इसकी surface है वो hard होती गई cooling के साथ, ठंडे होने के साथ. Water appeared on the surface in liquid form. The gases formed the atmosphere. और gases ने क्या बनाया? Atmosphere बनाया. Slowly the conditions become suitable for life to take form. और धीरे धीरे conditions ऐसे हो गई कि हम यहाँ पे रह सके. The earth is made up of 3 layers. Earth 3 main layers से मिलके बनी होती है. That is core, mantle and crust. Now we will discuss about core. The innermost layer is called the core. जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको हम core कहते हैं. It is made up of dense minerals, mainly iron and nickel. इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा होता है? आयरन और निकल. The core has a solid inner core. और core का solid inner core भी होता है और molten outer core. Okay, the inner core is the hottest part of the earth. जो inner core होता है वो सबसे गर्म part होता है अर्थ का. और इसका टेम्परेचर कितना होता है? About 4000 degrees Celsius. Okay, so next one is the middle layer is called the mantle. और middle layer को क्या बोलते हैं? जो बीच वाली layer है उसको बोलते हैं mantle. It is a thick layer of rocks. ये एक thick layer होती है rocks की और इसमें बहुत ज़्यादा minerals होते हैं जैसे iron and magnesium. Next one is the outermost layer is called the crust. और जो बाहर की लेयर होती है अर्थ की उसको बोलते हैं crust. It is the coolest layer. ये सबसे ठंडी लेयर होती है. We live on this layer. और हम इसी लेयर पे रहते हैं. It consists mostly of rocks such as granite and basalts. The crust is divided into different plates. The crust and mantle float on the molten outer core. They are always being pushed upward with great pressure by hot gases and molten rocks. This result in the formation of mountains. और इसकी वजह से क्या बनते हैं? Mountains बन जाते हैं. Due to extremely high pressure, क्योंकि pressure बहुत ज़्यादा होता है, some weak spots in the crust break open. और जो weak spots होते हैं वो खुल जाते हैं. The hot gases and molten rocks eject out through these opening. और जो hot gases होती हैं और molten rock होता है वो इन openings के थ्रू बाहर आते हैं. This is how a volcano is formed. और इसी तरीके से volcano बनता है. Volcanoes that erupt regularly are called active volcanoes. Active volcanoes कौन से होते हैं? जो regularly erupt होते हैं, मतलब कि विस्फोट होते हैं. Next topic is a volcano that has not erupted for a long time. वो volcanoes जो लंबे समय के लिए इरप्ट नहीं होते हैं, विस्फोट नहीं होते हैं, that can be erupt is called a dormant volcanoes. Okay, next is a volcano that has not erupted during recorded history is called extinct volcano. Okay, this topic is rotation and revolution. All planets shows two kinds of movement. हर planet दो तरह का movement दिखाता है. एक होता है rotation और दूसरा होता है revolution.
दे गो अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। एक फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब एक पाथ, एक रास्ता, उसमें फिक्स में जो वो सन के आसपास घूमते हैं, उस मोमेंट को बोलते हैं रेवोल्यूशन। अर्थ टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution. दिस पीरियड इज कॉल्ड सोलर ईयर, और उस पीरियड को बोला जाता है सोलर ईयर और सिंपली अ ईयर। सेकेंड वन, दे ऑल्सो स्पिन अराउंड एन एक्सिस, और वो एक्सिस के आसपास स्पिन करते हैं, घूमते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे अर्थ कैसे स्पिन करती है? वेस्ट टू ईस्ट। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कहाँ से चलती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। अर्थ एक्सिस इज टाइटल्ड at an angle of 23.5 degree. The earth takes 24 hours to complete one rotation. अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। मीन्स डैट एक दिन। The day and night on earth are caused because of the rotation of the earth on its axis. और जो डे और नाइट मतलब दिन और रात होते हैं वो भी अर्थ के रोटेशन की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ सीजन्स। अब आपको पता है सीजन्स बदलते रहते हैं, एक जैसा सीज़न कभी भी नहीं होता। कभी होता है कि पूरे साल भर एक जैसा सीज़न है, ठंड है तो ठंडी है, गर्मी है तो गर्मी ही है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है। इट मीन्स सीज़न चेंज होता है। There is another imaginary line that runs through the center of the earth at an angle of 90 degree to the axis. इसके अलावा एक और imaginary line होती है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो कहाँ से रन करती है? सेंटर ऑफ अर्थ एट द एंगल 90 डिग्री एंगल पे टू द एक्सिस। ओके, और उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, और अपर हाफ को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और लोअर हाफ को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। टाइटल्ड एक्सिस ऑफ अर्थ एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन कॉज चेंजेस ऑफ सीजन। और चेंजेस ऑफ सीजन किसके कारण होते हैं? जो अर्थ एक्सिस होता है और उसके रेवोल्यूशन के कारण, जो वो सन के अराउंड करते हैं। When the North Pole is titled toward the sun, जब North Pole sun की तरफ titled होता है, the Northern Hemisphere receives direct sun rays। तब Northern Hemisphere जो होता है, Northern Hemisphere मतलब upper half, ओके, तो वो डायरेक्ट सन रेज को रिसीव करता है, और इसी के कारण वो बहुत गर्म भी हो जाता है और डेज लॉन्गर होते हैं। इट इज़ द समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और इसी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग दिस पीरियड द साउथ पोल इज टाइटल्ड अवे फ्रॉम द सन। अब इस टाइम पे जब नदर्न हेमिस्फीयर पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं तो साउथ पोल जो है वो दूर हो जाता है सन से। सो द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव स्लैंटेड सन रेज। तब उस पर स्लैंटेड सन रेज पड़ती हैं। द डेज आर शॉर्टर, और वहाँ पे फिर दिन छोटे हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। इट इज़ दस विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और इसीलिए उस टाइम पे जब नदर्न हेमिस्फीयर पे समर सीजन होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर सीजन होता है। विंटर्स होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो इज़ इट क्लियर? When the North Pole is tilted away from the sun, the Northern Hemisphere receives slanted sun rays. It thus has winter. अब फिर क्या होता है? जब नॉर्थ पोल दूर होता है सन से तो वहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर पे स्लैंटेड सन रेज पड़ती हैं और वहाँ पे विंटर्स हो जाती हैं, और इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं तो वहाँ पर समर हो जाती है। That's all for today. See you in the next class. Till then, goodbye. Take care of yourself. Thank you.